I said मैं श्योर हूँ फट रही है स्टेज पे बोलने की। If you open a bag ना अभी भी कुछ बहुत पुरानी चीज पड़ी होगी, मिट्टी निकलेगी। मैं आज कुछ प्रोमिसेस करना चाहती हूँ, मतलब सनम के लिए। गाना भेज रहे गा के। वो सनम का। आई थिंक पहली बार हमने इस कॉन्वर्जेशन में आई थिंक कभी डिस्क्लोज किया पब्लिकली कि हम शादी नहीं करने की सोच रहे हैं। ऐसे लगा कि शायद टूट जाएगा। टूट जाएगा। All right, ladies and gentlemen, it's Sanam and Abigail in the house. Oh yeah. This is the love story of Sanam Johar and Abigail Pandey, right here on Amrita Rao and Arjun Moore join this lovely couple. And how could they miss out on burning the dance floor? Let's hit it. Couple of things. Hey, Sanam and Abigail, welcome to Couple of Things. Yeah. So, Thank you. We're so happy we could finally be here. ये हम लोग एक्चुअली बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, इंटरव्यू होगा, ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर फाइनली आज हम लोग साथ में हो गया। Today's the day. But what a beautiful looking couple. Very beautiful looking. Thank you. दोनों भी बहुत सुंदर दिखने वाले। और आज हम दोनों का मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ है, नहीं बेबी? वो कह रहे हैं प्यार है बेबी, प्यार। और कितने खूबसूरत नाम। While we were coming, we were like Abigail and Sanam. I never heard that name before. Yeah. Abigail, never heard. और Never. Sanam तुमने कहाँ सुना? सनम तो 90s में like 90s. सनम जवानी। There are so many songs with Sanam, it's Yeah. crazy. हाँ, but tell me, आपके मम्मी डैडी ने क्या सोचा कि उन्होंने आपका नाम सनम Actually, I feel पूरा फैमिली ना थोड़ा सा फिल्मी है. सबके नाम थोड़े फिल्मी हैं. Mom's name is Kamini. Dad's name was Tony. Tony was like villain's name. My sister's name is like Deepshika and Karishma. अच्छा। And we are Johars. Okay. Yeah. So we're quite filmy like that. Okay. Hence, it was actually Sanam Jeet. Sanam But Jeet. everybody called me Sanam. So, yeah, Sanam. So, are you a Mumbai guy? I'm a Delhi boy. You're a Delhi boy? Yeah. तो जब वो आपका नाम Abigail, ये नाम का मतलब क्या है? ये नाम कैसे? So basically, my mom's a Catholic. Okay. And dad's a Hindu. Okay. तो मम्मी ने पहले ही बोल दिया था उनको कि देखो सरनेम तो is going to be yours. Yeah. तो I want names कि हम बाइबल से निकाल के नाम रखे. Wow. So I'm Abigail and my sister is Kimberly. How cute. So yeah, so Abigail is a Hebrew word which means father's pride. Okay. क्या बात। Ironically, it was my mom's decision, but Turned out to be father's pride. turned out to be father's pride. Okay. And yeah, so Abigail, it's nice also, it's also annoying also sometimes because not everyone can pronounce it. So when I go to the set and there's so many people who will like destroy my name. कैसे क्या बोलते There is one hairdresser, Nimmi Didi, if you're watching, this is Acha. for you. She calls me Abby. Abby. Yeah, Abigail. And I keep telling her if you can say Ad and say Abby. Now she saved my name also as AVI. But you're right that it's an unusual name because Yeah. first time also when I met her and she told me her name is Abigail. So I saved her name as ABBY and GAYLE. Because the last Gale I knew was Chris Gale. He is GAYLE. So then I understood that she told me तुम्हारी that. नाम है और गेल सरनेम है। And 1.5 years after we started dating, I told it कि I think it's time baby, अब नाम change कर सकते हो, correct कर सकते हो कि it was that किस Abigail. दिन की बहन नहीं हूँ मैं। Okay, so yeah, मतलब so that's your background. Yeah. And you've been Mumbai girl. Yes. Yeah. Mumbai and Delhi.
कहाँ कौन से स्टेशन पे मिले आप दोनों? Actually, किसी friend के through मिले हम, and it's strange because I am from Bombay, but I think there are a lot of people from North Indian industry. So मेरे Bombay के दोस्त बहुत गिने चुने हैं, बाकी सब Delhi वाले भरे पड़े हैं. Like I have a lot of Delhi friends. Okay. So one of a friend of ours, Mohit, he was his flatmate, अच्छा. and he's telling me the longest time, you know, you should come home, you have to meet my flatmate Sanam, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है. He didn't even have any intention of like, you know. And I was like, okay, and he's actually a very, if you like get to know him, he's a very sweet, helpful sort of a person. So I was like, okay, I thought he's just exaggerating and all. So I finally one day he was like, chal, kuch nahi kariye, ghar aaja, I'll make you meet Sanam and everything. So a friend of mine and me, we went to Mohit's house, and then Sanam comes out in a towel. नहीं And सावरिया जब से- I did not know that there were girls outside. तो मैं तो नहा के बाहर आ रहा था ना. या तो उल्टा कह रहा मुझे पता था लड़कियां बाहर हैं बस मुझे का I'm सावरिया just saying, मोमेंट we're loud girls. I don't know how he didn't figure it out, or did he? आए full abs But- abs सिखा के. क्या एंट्री? I don't know, तुझे ये बात नहीं पता, मुझे abs लग गए, पहले आ जाती. ये sweet. But I barely spoke to her. First day we Yeah. met, and I'm a shy guy. You know, बहुत पहले तो ज़्यादा था. शाय गाय कमिंग आउट इन टॉवल इन फ्रंट ऑफ गर्ल्स I'm shy in talking, not in showing. Yeah. So yeah, and I barely spoke, and she thought कि मेरे में बहुत attitude है. Yeah. हाँ. After that, I This think is वो the होता है disadvantage of being a shy कम boy. बात करने वाले shy होते हैं, introvert We can होते get हैं. into that. ये अमृता के साथ भी होता yeah, है like ऐसा. to an extent, then after that I've messaged Mohit कि I don't think your flatmate was really happy that हम लोग घर आए थे. He didn't स्वीट seem तो friendly. कहीं से नहीं कहीं से था. नहीं. Yeah. तो वो थोड़ा रूड लगा that Mohit called you up. He's like, no, he's very sweet. वो बहुत अच्छा है. I said, okay, ठीक है. And then we ended up, I think, फिर आप टॉवल से फिर बाहर ही नहीं आए. नहीं, तो वो तो तुम्हारा fantasy हो गया. yeah. Achha he tells everyone this story only. So Like, my story is better. कि हाँ, बताओ, कि बताओ. घर पे आई and I came out of the bathroom in a towel and she fell in love with me. Yeah. Sweet, No, crisp. वो मेरे पीछे पागल हो गई was हाँ, actual actually. term अच्छा, that he पीछे uses. पागल हो गया. मेरे पीछे पागल हो गई मेरे abs के पीछे. That's how we started dating. Is his version. Okay, okay. But the actual After version that she is became Abigail. Abhi Space Gill. My name has been divided into a first name and surname. Surname. हाँ. My फिर God. So then yeah, we were friends I think for a year and a half because हाँ. oh yes. Also कि जब next time इससे मैं मिला, वो भी ऐसे था कि my friend said कि आजा पार्टी करते हैं, मतलब ये एक घर पे हम मिल रहे हैं कहीं पर. And I'm not the kind of guy जो बाहर जाता है और ऐसे. Okay. तो I took my dog along. He told me कि वहाँ पे हाँ there are friends and everything. I'm like चल ठीक मैं बम्पी ले लेता हूँ. And बम्पी का बहाना best है. I'll take him home. You know, it's like getting your baby into this thing. है ना वैसा वाला. जाना पड़ेगा मुझे. जाना पड़ेगा. And that was the day कि मैं उस दिन बम्पी के साथ नाइट स्टे किया वहाँ पे मैंने. हाँ? तो we, because वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर था कनिका and I was staying with her for a few days. मेरे मॉम डैड यूएस गए थे. तो then we were staying in the night. तो then ऐसे हो गया था कि बहुत लेट हो गया तो मोहित was like चल मैं भी रुक जाता हूँ. Then suddenly it was like सनम और बम्पी भी रुक रहे हैं. We were like okay. So there was like a dog also with us. And at that time my best friend she didn't have a dog ever and everything. It was the first time there was a dog also staying back at the house. But I think yeah it was fun. But क्यों Where- सनम और डॉग क्यों वापस रह सनम and गए? बम्पी. बम्पी हाँ सनम and बम्पी. Because मुझे उसे देख के प्यार हो गया था ना. That's why बोल रही थी right. So it was like a mutual attraction, right? है ना? ऐसा हुआ था? ऐसा ही हुआ था because जब गया वहाँ तो I thought कि मेरा प्लान यही था कि आज मैं 15-20 मिनट कट लूंगा. रुकूंगा कर and दिए. फटाफट I will just कट लूंगा उसके बाद. हाँ. But then नहीं वही तो जानना है. vibe really matched. बहुत ऐसा प्यारी बातें- लगी. कुछ But बातें oh याद नहीं हैं? actually I'll tell you क्या हुआ. हाँ, ये बोलो. मैं एक शो कर रहा था एंड शी गॉट टू नो कि मुझे कितना कितना पर वीक मिल रहा है और इसका प्राइस मनी कितना है और उसको उसमें गाड़ी भी मिलेगी उसमें बाइक भी मिलेगी. तो दिस इज द सेकंड टाइम मैं इसको मिल रहा हूँ एंड शी इज लाइक कि और मैं एनीवे बहुत शाय हूँ. ऐसे लाइक कि यार तू ये शो जीतेगा ना तो मैं तुझसे शादी कर लूंगी. And I swear at that second point of time. time it was just something जो मैंने ना मजाक में ऐसे बोल दिया कि यार बहुत पैसे कमा रहे हैं. ठीक है तू जीत जाएगा ना तो मैं शादी करूंगी. He started blushing and all. I was like अरे I'm kidding Yeah, यार. on that show. And he won On that that show उसके बाद ही मतलब we've been together ever since. उसके बाद Yeah. Oh my God. तुमने उस स्टेटमेंट को बहुत सीरियसली नहीं लिया? yeah I think it was just वो That was that moment you think that थोड़ा attraction शुरू हुआ? yeah I think so.
yeah. माय देखो यार कैसे होता है ना, आप कभी कोई बात ऐसी कह देते हो I And हो गया वो। और वो हो जाती है चीज यार। कमाल Yeah, है। and we also have a picture from that day, me and Yeah. Bumpy. That was the first time. Now Bumpy is also my baby, obviously. But we have a picture also from that day that he put on his Instagram. He posted of me and Bumpy, and I was like, चलो बोल नहीं रहे, पोस्ट कर रहे हैं, maybe it means something. But उसे 1.5 साल ना मुझे बहुत रुका है. Like for 1.5 years, I fell for him. Like after like he came back and stuff. But he was in a place कि मैं अभी ना relationship में नहीं जाना चाहता because of whatever reason. Career। Like in every boy, you know, Yeah, like yeah. सबका होता ही है। तो 1.5 साल लग जाएगा। फाइनली व्हेन आई वाज लाइक ओके फाइन, नहीं होने वाला है एंड आई प्रोबब्ली शुड मूव ऑन। एंड प्लस बिकॉज हम इतने अच्छे दोस्त हो गए थे तो आई थॉट मे बी अब शायद दोस्ती ही अच्छी है, सारे हमारे फ्रेंड सर्कल एक हो गया था। नहीं, So then I हम was थोड़ा like- रिवाइंड करेंगे। हाँ, ये और 1.5 हम साल- थोड़ा रिवाइंड करेंगे, हाँ। मतलब हम उसी मोमेंट पे चलते हैं, उस स्लीप ओवर्स, Yeah. पजामा पार्टी जो हुई अनप्लान्ड, उसके बाद देन हाउ डिड यू गाइस टेक इट फॉरवर्ड? बिकॉज़ सी सनम, एनी गर्ल माइट से अरे क्यूट है यार, इसको बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ। या No, but see, I think the thing was, I was first thing, मैं तो बहुत काम पे फोकस कर रहा था, बिकॉज मैं भी आया था बॉम्बे, एंड जो बाहर के होते हैं उनको बड़ी सारी चीजें होती हैं, यू नो, रेंट होता है, एंड यू नो जस्ट बेसिक, लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज लाइक सो जो बेसिक डीड, जो बेसिक जो चोर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, मुझे खुद करना पड़ता है। सो आई वाज फोकसिंग ऑन दैट, एंड देन ऑब्वियसली ये तो थी, बट आई वाज आल्सो स्टक इन माय पास्ट इन टर्म्स ऑफ एक्स, ओके एंड व्हेन आई मेट हर एंड आई फेल्ट कि ये भाई यही है जो मुझे अपने पास से बाहर निकालेगी, बट आई डिडंट वांट टू लीव दैट पास्ट, सो आई वाज इन दैट मिडिल जोन, मिडिल ग्रे जोन कि मैं हाँ या ना, बट देन फर्स्ट मूव किसने किया? नहीं, एक मिनट। फर्स्ट मूव ऑलवेज मैंने ही किया है हर चीज में। आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, You know why I want to get a little bit more into this because हमारा चैनल ही पूरा प्यार और रिश्तों के Yeah. बारे में है, और इस समय ऐसे कितने होंगे लड़के और लड़कियां भी इनफैक्ट जो कहीं ना कहीं उस जगह पे होंगे जहाँ पे यू नो Actually. यू वर देयर, Yeah. आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, बट यू आर नॉट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, यहाँ पे एक लड़की है जिससे अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये जो पोजीशन होती है इससे कैसे डील किया आपने? हाउ डिड यू डिसाइड, व्हाट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर? Actually, deciding factor is very funny. तो जब मैं जहाँ जो मेरा शो था वो एक्चुअली साउथ अफ्रीका में था, केप टाउन में था, Okay. एंड जाने से पहले बहुत बैक एंड फोर्थ चल रहा था, तो जाने से पहले आई सेंट हर अ मैसेज सेइंग कि ये शायद नहीं चलने वाला है, एंड यू नो द बेस्ट थिंग, 2 महीने कोई बात नहीं कर पाऊंगा, शी विल आल्सो गेट ओवर एंड एवरीथिंग, ओके, तो वो सब हो गया थोड़ा सा, शी मैसेज मी आल्सो कि आई ऑल द नो बेस्ट। ही वाज सो मीन टू मी, आई मैसेज हिम ऑल द बेस्ट बिकॉज़ मैंने ये सोचा कि ठीक है चलो, वेरी ऑनेस्टली ऐसे कुछ 1 महीने में वो वाला प्यार तो नहीं होता, इट्स ऑलवेज लाइक एन अट्रैक्शन एंड एवरीथिंग, सो आई वाज अवेयर ऑफ दैट एंड आई थिंक ठीक है चलो अभी एक फ्रेंड सर्कल हो गया है हमारा, तो एटलीस्ट कॉर्डियल होनी चाहिए चीजें कि वियर्ड ऑकवर्ड ना हो हमारे बीच। तो मैं उसको मैसेज करती थी ऑल द बेस्ट फॉर योर शो, ही नेवर रिप्लाई टू मी, और मेरे बाजू में जो लोग मैसेज कर रहे सबको रिप्लाई बैक मिल रहा है ना, लाइक मुझसे इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई है? मुझे लीड ऑन नहीं करना था बिकॉज मैंने ऑलरेडी इतना कर दिया था, एंड आई वाज स्टिल, मतलब अपने टर्मोइल में मतलब किसी और को नहीं फंसाना था, सो आई वाज थिंकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, ठीक है। बट शो खत्म हुआ, आई मेट हर अगेन, फिर एक मेरा दोस्त लाइक यार ये अभी कितनी सुंदर है यार, and I was like ये लड़की हाथ से नहीं जानी चाहिए बिकॉज, and I was like कि ये आज मैं you know I'll मैं बात अभी करने वाला हूँ, you know 1-2 दिन में then I spoke to her, एक दो दिन नहीं, वो 1-1.5 साल बाद, ठीक है? नहीं वो तो बात की बात है। हाँ, बात की बात। But when you went to South Africa for 2 months, Yeah. did you miss her? I was actually too focused, मैं मतलब उस Yeah, टाइम पे okay. बहुत तो इतना काम नहीं के लिए सोचा। कल जीत के गया है ना मैं, खतरों, it was a dare to dance था, dare to अच्छा, dance अच्छा, शो okay, था, लाइफ okay. ओके पे आया, Okay. खतरों प्लेटफॉर्म ओनली बट विद Okay. डांसिंग, अच्छा। अक्षय कुमार was hosting that, Okay, okay. and लाइफ ओके being a smaller channel, वो ज्यादा उन्होंने प्रमोट नहीं किया, so it didn't come out too much, ओके, बट मैंने तो पैसे बहुत कमाए वहाँ से। और क्या चाहिए? So वापस आया, then I got to know कि अच्छा there are other you know Other boys other boys in the Shots. party. yeah, and I was like ये तो गलत हो जाएगा, this is like the app girl, and she understands me, you know, and I know her, and she's already taken me out
मेरे पास से मुझे निकाल ही चुकी है ऑलमोस्ट, कुछ परसेंटेज बचा है क्योंकि मैं उसी उसमें था कि हाँ ना। सो दैट फ्रेंड मेड इट श्योर कि नहीं। कौन है ये दोस्त का नाम? नहीं अच्छा, दोस्त का नाम नहीं है, पर जो भी है वो दोस्त रही। थैंक यू सो नाम मच। इनका तो बदनाम हो जाएगा। So yeah, actually उसने भी नहीं बोला, somebody else told me and I saw something like he's approaching and you know. अच्छा एक बार मैसेज आया उसका फोन पे, जो ऐसे कुछ मैसेज भी नहीं था, गाना मेरा भेज रहा है गा के। ओ समझ। ये तुझे वॉइस नोट क्यों भेज रहा है? हमने मुझे भी नहीं पता, but I hadn't heard it also till then। फिर सुना तो गाना था, तो I could see visibly that he's gotten pissed। But again, हमारी जो लास्ट बात हुई थी, यही बात हुई थी कि now we're friends and थोड़ा वो कर लेते हैं। I also don't want to push somebody because बहुत ही फिर वो desperate type लगता है ना कि आप बार-बार एक ही चीज, तो मतलब होना होगा हो जाएगा। And very honestly, I think somewhere मुझे पता था कि यही होने वाला है। मतलब 1.5 years I didn't go on a date with anybody। मैंने किसी से बात नहीं करी है, मतलब romantically। I'm getting goosebumps listening Yeah, to this। because somehow and all my friends came and told me कि यार देख ले, move on कर ले, अच्छा लड़का है, but you know नहीं workout हो रहा है। And I used to be like पता नहीं क्यों, it just feels कि मुझे ना wait करना है अभी थोड़े टाइम। And the time जब मुझे लगा कि अब बहुत हो गया, it's been 1.5 years, and it just happened कि मैंने एक common friend को बात में बोला कि अब I think I should, you were right and you know everything, and that common friend went and told him, and that's when he came and he told me that okay let's make it, and then we started dating. So it was like a one, but I think वो 1.5 साल जरूरी था हमारे लिए because both of us had passed that, हमें बाहर निकलना था उससे। Even you, okay। एंड हमारी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग हो गई थी तब तक। इतनी स्ट्रांग हो गई थी, जब हम डेट करना स्टार्ट हो गया आई वाज लाइक अब क्या करेंगे, अभी इतनी दोस्ती हो गई है, अब अचानक से रोमांटिक कैसे हुए। बट आई थिंक वो बहुत ही एक स्ट्रांग फाउंडेशन बन गया था हमारी I रिलेशनशिप am का। loving every bit of this conversation, the layers from this side, and how things are flowing. My God. And जब I decided, so my mom was over, तो ये बहुत चिल कर रही है, मम्मी के साथ बहुत चिल कर रही है और ये सब। एंड मम्मी डिडंट नो कि अच्छा यहाँ पे कुछ है, कुछ दाल वाल पक रही है। अच्छा, जनरली मम्मीज गेस हाँ। एंड मम्मी न्यू समथिंग एल्स, तो कोई तो ऐसे फ्रेंड्स कीप कमिंग ना। Okay, तो okay। मम्मी मेट दिस गर्ल केम, एक टॉल, तो मम्मी को लगा उधर कुछ, तो मम्मी इज लाइक कि अरे तो मेरी बेटी से शादी कर ले, सम रैंडम गर्ल, सम अदर फ्रेंड, और उन्होंने बोल दिया। उन्होंने बोला अरे तू कितनी, ये तो लंबी भी है और ये भी उसको यही पसंद है। तो यू नो मम्मियाँ बहुत करवा होती है। आई एम लुकिंग एट हर नाली क्या चल रहा है मुझे पता भी नहीं है। एंड उस हफ्ते व्हेन वो वेकेशन पे थी, वो शी लेफ्ट, एंड उसी रात को व्हेन शी लेफ्ट, उसी रात को आई टोल्ड हर कि यू नो आई हैव बीन रियली अनफेयर एंड आई वांट टू मेक दिस रियल। And the reply I get is thanks. I was sleeping Because she did not understand what I'm doing. मैं सो रही थी, ठीक है, तो ज्यादा क्रिएटिव हो गए भाई। Yeah, actually थोड़ा मुझे लगा कि ज़्यादा। एक तो मैं सो गई हूँ, ये नहा धो के यार मुझे उठा रहा है एबी, हाँ, तो मुझे बोलते हैं कि आई एम सो सॉरी, आई हैव बीन अनफेयर टू यू एंड यू नो आई वांट टू मेक दिस रियल। तो मुझे लगा उसको बस बुरा लग रहा है दैट यू नो आई फीलिंग्स फॉर हिम, तो वो बस अपोलोजाइज करे बिकॉज़ ही इज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो बहुत ना स्वीट टाइप का है। तो मैंने ऐसे ही कर दी कि अरे थैंक यू, और मैं वापस सो गई। अगले दिन ही हैज टोल्ड एवरीबॉडी कि अरे उसने बोल दिया थैंक तो इतना इंटेलिजेंट प्रपोजल किया है। अभी शूट में जा रही हाँ बुलवा दिया। अभी शूट में गई हूँ, सब मैसेज करे हो कांग्रेचुलेशंस, हमने फॉर क्या हो गया? वो क्या हो गया। तो फिर भी फ्रेंड कॉल करके बोलती कि तुझे याद है ना कि सनम और तेरी बात हुई थी रात को, उसने तुझे उठाया था। मैंने कहा हाँ, मैं कुछ तो बोल रहा था कि सॉरी अबाउट समथिंग। बोलती उसने तुझे प्रपोज किया, उसने थैंक यू को हाँ समझ लिया, तो योर गेम ना। I'm like हाँ, on set is when I realized कि what when I wasn't even with him that I've been proposed to। मुझे तब तक पता भी नहीं था कि मैं रिलेशनशिप में जा चुकी हूँ। अच्छा। But ये कैसे, मतलब you guys were already staying together that time? बहुत बार we used to crash at each other's houses, Yeah, क्योंकि लेट पार्टी हो गई थी and we were like even that first night जो बम्पी वाला हम बोले थे वो डॉगी को लेके Right. आया था, हम लोग कुछ आई थिंक 7-8 लोग गद्दे बिछा के, क्योंकि मेरी फ्रेंड के घर पे एक ही रूम में एसी था और बहुत गर्मी थी, तो हमने ऐसे गद्दे बिछाए थे और सब ऐसे साइड बाय साइड, क्योंकि उस एज पे 21, 22 एवरीवन हैज लाइक स्मॉलर हाउसेस, एवरीवन इज क्रैशिंग एट ईच अदर्स। तो उसी रात उसकी मम्मी गई थी, तो फिर मोहित था हमारा दोस्त, ही सेड यार रुकी जा, अभी सुबह शूट ही जाना है तुझे, इधर से ही चले जा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कपड़े वपड़े तो बैग में मैं हमेशा कैरी करती थी, शूट पे काम ही आता है। वो तो मोहित को मैंने ही बोला था ना, उसको बोले कि रुके। या बट तब मुझे नहीं पता था, तो मुझे लगा ठीक है चलो। अभी सो गई मैं, जो बेचारी का पूरा वो रात हो गया है, तब तक आई पास्ड आउट ऑन द बेड, फिर मुझे उठा रहा है अभी। So this is which year? This 2015 15 2015। 15 yeah।
Nice. 14 we met obviously, एक Yeah. साल तो उसमें ही लग गया Yeah. खेल के But tell me, like I said, like it's very easy to fall in love or get attracted. ऐसा cute looking लड़का है. But what is it in Sanam that attracted you? वेरी ऑनेस्टली क्योंकि तब तक मैं 15 साल की थी जब मैंने काम करना स्टार्ट किया. मैंने टीवी 15 साल की उम्र में स्टार्ट एंड डन लीड फॉर बालाजी जब मैं 15 साल की थी. अच्छा. तो तब तक ना मैंने बहुत इंडस्ट्री में लोग से मिले थे एंड आई थॉट कि गाइस आर लिटिल बहुत ही लाउड होते हैं एंड एवरीथिंग. आई एम वेरी लाउड. एंड दिल्ली बॉयज. Okay. तो मुझे पर्सनली आया. दिल्ली बॉयज का एक है ही है ना सबका मतलब Cushion. Yeah. We have to fight that. तो फिर मैंने मेट हिम. वो इतना मतलब सॉफ्ट स्पोकन एंड यूज्ड टू डू वेरी स्वीट थिंग्स कि बहुत बार ये तो हमारी डेटिंग से पहले ही होता था कि हम पार्टी में हैं और मैं अपना फोन ढूंढ रही हूँ तो देखती हूँ सनम ने मेरा फोन चार्ज पे लगा के रख दिया क्योंकि मेरा बैटरी लो था. तो ये सारी स्वीट चीजें करता था कि मेरी तबीयत खराब हो गई है तो चाय बनाना, कॉफी बनाना, ऑमलेट पाव बनाना, ऑल दीज थिंग्स. और वो मैंने कभी किसी लड़के में नहीं देखा था कि जो इतनी ओपनली, वरना especially at that age I think guys have that care, cooking नहीं करते हैं, साफ सफाई नहीं करते. He does everything. वो घर का सारा काम कर सकता है, from cooking, cleaning, everything. तो I really like that. ये तो हम पार्टी रख रहे हैं, सब चीजें उड़ा दी जाएंगी. तो सब कर लेता है. तो I क्या feel like क्यों But I think that's I Comes think naturally. मम्मी का ही है. मम्मी से because I have 2 elder sisters. I'm the youngest one. Okay. तो मैं ही घर का मुंडू था ना. You know मुंडू what मुझे लगा मुंडू मुंडू का उल्टा थे क्योंकि तुम रात कर रहे होगे बैठ के. Not at all, not at all. अच्छा. तो उन्होंने मुझसे सब करवाया, एवरीथिंग पॉसिबल. कपड़े धुलवाए, मतलब इट वर्क फॉर मी क्योंकि जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ Yeah, सो एवरीथिंग वाज सो हैंडी. So stress नहीं हुआ. उससे पहले एक शो कर रहा था मतलब फॉर द शो दैट आई केम टू बॉम्बे वाज DID सीजन 3. तो उसमें देखा रेस्ट ऑफ माय कंटेस्टेंट्स सब they're struggling कपड़े धोने में, चीजें सेट करने. बट आई वाज लाइक मेरा एवरीथिंग वाज so well organized and everything. Then I realized okay मम्मी सही कहती थी, ये सही हुआ जो भी बचपन. So it all made sense. Hence the एंड वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट इट. लाइक कभी वो ये नहीं सोचेगा कि कुछ भी हो जाए मेरे लिपस्टिक सेट पे सेट करेगा, फिर ये नहीं होते मेरा नेल पॉलिश लगा देगा. लाइक ही डजंट फील लाइक ओ दिस इज नॉट समथिंग जो लड़के नहीं करते एंड ऑल ऑफ दैट. तो आई थिंक ये सारी चीजें मैंने बिगाड़ दिया शायद तुम्हें. बहुत Swear to God. He's even done plucking for me. तो मेरे बाल नहीं निकल रहे थे, he's been plucking. My mom had a parlor तो वैक्सिंग थ्रेडिंग मुझे आती है. बस ऐसा लड़का सभी को मिले. But your upbringing, you said mom and 2 sisters. तो यानी कि घर में एक लड़के के घर में जब 3 औरतें होती हैं ना, तो उसकी अपब्रिंगिंग बाकियों से अलग होती है. ये डेफिनेटली बीइंग ब्रॉट अप बाय 3 लेडीज ऑलमोस्ट. 2 बड़ी बहनें भी हैं ना, 3 मॉम्स. और अब यहाँ पे आपको अबिगेल मिलती है. तो एक लड़का जो ऐसे सेटअप में बढ़ता है तो उसका माइंडसेट, एक थिंकिंग कि मेरी लड़की ऐसी होनी चाहिए. तो where did that match? See, obviously अभी तो नहीं होती है हमारी झगड़े. पहले तो Because I मुझे पता है कि शायद ये ऐसे करते हैं. You get up, अपना बेड ठीक करो, चादर को ठपो और डाल के ऐसे then you walk. That's the way. And we have Abigail here जो मतलब she is the lord of the house. ये घर का लौंडा है, ये बंदी है. Yeah. मुझे लगता है भगवान ना स्क्रिप्ट करके जोड़ियां भेजता है कि एक ऐसा होगा तो एक ऐसा होगा. अच्छा, फिर हम क्या फिर अबिगेल का क्या देखा? तो एबिगेल का देखा कि इसकी ये तो चप्पलें इधर रखी हैं, एक बैग, इफ यू ओपन अ बैग ना अभी भी कुछ बहुत पुरानी चीज पड़ी होगी, मिट्टी निकलेगी एक बैग से because she is the messy one. I'm the clean one and that's how we. ठीक है. It's like the yin and yang. वो तो बोलते हैं बेबी कभी कभी डर लगता है तुम्हारा बैग खोलूं तो चमगादड़ She got better. अभी better in a way कि ऐसा नहीं कि चेंज हो गई है, अभी भी है थोड़ी मैसी, बट देख के एक दूसरे को देख के बहुत झगड़े भी हुए हैं हमारे वैसे. इनिशियली तो बहुत झगड़े हुए when we started living together. क्योंकि उससे पहले हम 2 साल डेट किया हमने, उसके बाद we started living together. And उसमें समझ में आया कि actually as people how we are because When I you stay think together, it's a different ball game. And then ऊपर से फिर वो लॉकडाउन. लॉकडाउन में तो You are staying together. क्या So जो आपने जो नच बलिए में पार्टिसिपेट किया था as a couple, that was before the lockdown. or- way before. That was way before 17, that. yeah. Okay. क्योंकि I think that was one platform where आप दोनों ने not only just as dancers you inspired people, but I think your love story really Yeah. shook a lot of people out there. मतलब it was such a inspiring
रोंगटे खड़े हुए उस पर आपका वो जो प्रपोजल था, Oh oh my god, See, that was the Nehle Pe Dela. You know, I am like the romantic guy. I keep doing things. तुमने 10 चीजें की, इसने एक आके मारा बस। He always says this only. यही किया एंड अभी तक वही चल रहा है. You know, she's just उसकी मैं टॉप कर ही नहीं पाया. I can't top her proposal. I remember वो जो प्रपोजल हुआ था ना, तो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था दैट मुझे कुछ स्पेशल करना है एंड व्हाटएवर. एंड अभी ऑलरेडी हो गए थे हमें, आई थिंक नच में वी वर 2.5 years हमारे हो गए थे. एंड आई न्यू कि मुझे शादी उससे करनी है एंड आई वाज होपिंग कि उसको भी करनी है वो. एंड सच स्टेज पे तो मना नहीं करेगा, तो चलो वो तो मुझे सनम का पता ही, शादी नहीं भी करनी तो स्टेज पे इज्जत रखने के लिए तो हाँ बोल देगा. सो देन आई डिसाइडेड एंड देन आई हैड अ वर्ड विद द क्रिएटिव अनिर्बान जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. तो आई टोल्ड हिम कि मुझे ये करना है. सो ही इज लाइक ओके बट प्लान करना पड़ेगा ये वो. ऐसा नहीं प्लान वैन कुछ नहीं करना है, ये बेसिक चीजें ऐसे तो कुछ मुझे अच्छे से लिख के दे दिया, गिव हिम पॉइंटर्स बिकॉज आई एम बैड विथ लाइक बीइंग रोमांटिक. तो बोलते बस सैट एंड वी रोट दोस प्रॉमिसेस जो मैंने बोला है. एंड आई सेड ये मैं फिनाले के दिन करूंगी, क्योंकि एवरी वीक बिफोर दैट ना इतना स्ट्रेस होता था कि हम लोग एक्ट खत्म करते और फिर एकदम से जगह पे जाके बैठते ही अगली वीक का स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता था. तो आई डोंट वांट टू डू इट एट दैट टाइम. फिनाले में क्या है ना, हम लोग थोड़ा एक्ट्स को लेके स्ट्रेस नहीं थे कि चलो फिनाले में ये वो. तो ऐसे फिनाले तक पहुंचते तो हो जाता है. एंड इट वाज वेरी स्ट्रेंज क्योंकि बहुत लोगों को तब भी लगा था कि हम शायद 3rd-4th वीक में एलिमिनेट हो जाएंगे. अच्छा. क्योंकि less popular. Yeah. क्योंकि in comparison with other people, तो we were less popular. We just had dance. तो फिर हमने फाड़ना चालू करा, फिर हम सेकंड आ गए. yeah, so we were very this thing कि चलो फिनाले होता है. When the finale came, Anirban was like, do you want to do it? तो सनम की मम्मी थी वहाँ पे and I looked at her and I said, I'm thinking कि मैं ये करूँ. तो she looked at me, she's like, तू श्योर है? I said, मैं श्योर हूँ, फट रही है थोड़ी स्टेज पे बोल रही थी ये सब, बट मैं कर लूंगी. तो then she was like कर ली. तो then she went and got the ring क्योंकि फिनाले में 4 एक्ट होते थे. तो I didn't have time and he would know the minute I've stepped out to go somewhere, he would be कहाँ जा रही हो, रिहर्सल करना है. Right. So Sanam's mom went, clicked pictures and we decided ये ring. She got the ring and I was very clear that गलती से भी I don't want him to know. बिकॉज क्या हो रहा था ना, उससे पहले भी कभी कभी कुछ प्रपोजल में ना सामने वाले बंदे को पता चल जाता था. और एक प्रपोजल हो चुका था आई थिंक, दीपिका शोएब. सो उनका भी प्रपोजल हो चुका था 2-3 weeks बिफोर. एंड देन शी वाज लाइक कि उनको शो के दौरान नहीं करना है, एक बारी सब वोटिंग आ जाए, सब कुछ हो जाए तब ये करेगी. क्योंकि फिर लोग बोलते कि आपने वोट्स के लिए किया, ये वोट्स के लिए कर रहे हैं. तो जब वोटिंग आ जाए उसके बाद में फिनाले में अच्छे से एक बार कर लूंगी. तो नॉट बैड. मतलब मम्मी जी ने आपके साथ मिलकर प्रपोजल सेट किया, रिंग सेट की भाई. And I knew it even when he was reading ना, मुझे तब तक पता था ये कभी नहीं सोचेगा कि मैं ये करने वाली हूँ. He would never think. Yeah, he would never. Take us to that. हाँ, I'm copying your line. No, we said it together. Okay, well, take us through that. Yeah. एक के बाद जो आ रहा था वो क्या So क्या they were feel like आई? कुछ तो 5 promises या 6 promises, Five, 5 yeah. promises करे थे. मैं आज कुछ promises करना चाहती हूँ, मतलब सनम के लिए. And I started reading. So this is the first promise. मैं और तुम एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे. हम दोनों मेहनत करेंगे और एक दिन साथ मिलकर अपना घर बनाएंगे. और उससे पहले ना एक्चुअली क्या हुआ था, ऑन द डे ऑफ द फिनाले सिर्फ एक ही परफॉर्मेंस था जो हमें लाइव करना था, बाकी एक ऑन एयर ऐसे दिखा रहे थे कि Pre-shoot हो pre-shoot था. चुका था. Okay. This is promise number 2. मैं हमेशा तुम्हारी ताकत बनूंगी, तुम्हें अच्छी सलाह दूंगी और खुद भी तुम्हारी सलाह मानूंगी. एक्टिंग हो या डांस, हर चीज में हम एक दूसरे की प्रेरणा बनेंगे. अच्छा. कट्टू ये चालू है कि इन सबका चल रहा था कि कोई कपल किसी के लिए कुछ कर रहा है, somebody singing, somebody doing that. हम पति पत्नी बाद में, दोस्त पहले बने थे, इसलिए ये दोस्ती हमेशा कायम रहेगी. हम हमेशा एक दूसरे के लिए वक्त निकालेंगे और एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे. Then I started reading, सब कुछ अच्छा लग रहा है. They started playing this पहला नशा का पीछे का थोड़ा सा मूड को बना रहे हैं लोग. But I was so into that कि चलो it's very sweet. एक पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, 5वें पे ना मम्मी, जहाँ पे माँ बाप का वो आ जाता है ना रेफरेंस, I know. get super teary. I saw that. ऐसा चोक हो जाता वो हूँ. चोक हो गया था वहाँ पे. दिन अच्छे हो या बुरे, पैसे हो ना हो, तबीयत कैसी भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी. हमेशा तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का ख्याल रखूंगी. मम्मी
मम्मी की बात तो वो देखा है एंड देन आई सी हर नीचे बैठी है विद अ रिंग एंड आई जस्ट फॉर अ सेकंड आई वो था ना सब ऐसा ब्लैक हो गया था, सब ऐसा डार्क हो गया था। ये नहीं था कि यहाँ पे रणबीर कपूर बैठे हैं, अनुराग बासु इज सिटिंग, सोनाक्षी सिन्हा इज सिटिंग, कुछ नहीं समझ आ रहा था। आई वाज जस्ट लुकिंग एट हर एंड आई वाज लाइक क्या हो गया यार, एंड आई वाज सो ओवरवेल्म्ड। I almost said मैं रो तो चुका ही था, रो ही रहा था मैं actually. And then obviously I kneeled down, then we hugged, and I think she said कि अरे मम्मी पापा भी बैठे हैं, that's also there थोड़ा सा, if you see the window she's saying something. I know. And yeah, it was, and I पूरा भूल चुका था कि क्या बेबी ने क्या गलत किया था, क्या you know whatever mistake she did. Thank God. नहीं सिर्फ आप नहीं रो रहे थे, I think the whole nation was crying. I mean, I was in tears when I saw that moment. और जो promises किए अभिजीत तुमने, मतलब I think जो शादी के 7 vows होते हैं ना, these should be a part of those vows. Exactly the way they were written and they were felt and said. मतलब it was just amazing. वो बहुत अच्छा लगा कि हम मेहनत करेंगे एक साथ और एक साथ अपना घर बनाएंगे. I'll take care of your mom. Yes. And I will inspire you. मैं आपको सलाह दूंगी, आपसे भी सलाह लूंगी. मतलब क्या लिखा था, क्या फील किया था तुमने? we are going to put all those in the show. क्योंकि ये ऐसी चीजें जो हम दोनों को लगी, एक्चुअली अमृता ने मुझे वो वीडियो दिखाया, इंट्रोड्यूस किया, एंड वी थॉट कि यार ये तो एक्चुअली हर रिलेशनशिप में ये 5 चीजें सबको कॉपी पेस्ट कर रही हैं. Which is why जब लोग बोलते हैं ना अरे शादी कर लो, for me ना these promises are irrespective marriage है नहीं है, like this is something that we are going to do, and if you're sure of that, I think then you can kind of withstand anything, marriage, no marriage or whatever, वो सब हो जाता है अपने आप अगर आप अपने बेसिक जो promises होते हैं. and I think ये चीज मैंने सनम से सीखी है. I think मैं इतनी वो नहीं कर रहा हूँ, that इसने तो बहुत compliment कर लिया मुझे during this conversation. But I think मैं ये सब करता हूँ because I think you deserve all of this. अच्छा, yeah, that's also true. And she also maybe much more. And the more I've known her, जितना मैंने इनके past के बारे में सुना है, जितनी stories सुनी है, तो that just makes me so कि मैं और करूँ इसके लिए. You know, she's faced a lot in her life growing up and everything. So she left her studies to get into acting. She said 15 years में वो चालू कर दिया था. She had to do it. Choice नहीं था उसका. So she had to do it. She had, छोटी बहन भी थी, mother. She had to take care of everybody at 15. Oh my God. So there are a lot of things जो she's done. वो अपना, I don't think she gives herself इतना भी credit. That's so amazing. Yeah. I'm glad. I think she deserves much more. ये तो कुछ भी नहीं है. You deserve 2 Sanams. आएगा. वो सनम बहुत जल्दी आएगा. नहीं, बट वो जो कह रहे हैं ना, मैं उस सनम से रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी लड़का किसी भी लड़की के लिए जो भी वो कुछ कर रहा है वो क्यों ही करेगा, और कितना ही एक्टिंग कर लेगा, महीना 2 महीना कर लेगा, 10 साल नहीं कर पाएगा. वो जब लड़की डिजर्व करती है तो उसके अंदर से वो चीज आएगी. तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू. अच्छा, आप दोनों, आपने कहा आप दोनों को 10 साल हो गए एक दूसरे को जानते हुए, एक रिश्ते में. आप पहले एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड डेटिंग था, फिर उसके बाद यू स्टार्टेड लिविंग इन. लिव इन रिलेशनशिप के बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं. हमारा भी थोड़ा सा था कि जब हमने सीक्रेट शादी की और जब दुनिया को बताया ना, तो उस बीच का वो बड़ा मजेदार था, 1-2 साल का पीरियड था. बट क्या क्या चैप्टर्स हैं जो कि एक लिव इन रिलेशनशिप ओपन करता है एक कपल के बीच में? I think अच्छा बुरा दोनों. बुरा तो ये कि भाई घर ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है. जितने एक्साइटेडली हमने डिसाइड किया ना कि वाह हम लोग साथ में रहने वाले, उतना ही हमारा सोसाइटीज ने बस्किल किया है कि एक तो हम इंडस्ट्री से, ऊपर से डॉग है, ऊपर से शादी नहीं की है, साथ रह रहे हैं, ऊपर से दिल्ली से भी हूँ. सो देयर वर अ लॉट ऑफ लाइक, हमें घर ढूंढने के लिए बहुत टाइम लग गया कि जो हमारा फर्स्ट था. बट आई थिंक इट वाज अ वेरी लाइक, तब हमने एक 1.5 BHK लिया था एंड वी वर जस्ट, but I think it was the sweetest homes I've ever had because it was actually setting up everything from scratch. मैं हमेशा मम्मी के साथ रही हूँ. Then my mom got remarried when I was 16. So then stepfather came and they set up the house and they did everything very, very beautifully. Okay. But for me that was one house where with Sanam I kind of like
we've built it together. Yeah, we built it together. ऐसा था कि okay, this is my duty, ये मुझे देखना है, ये सनम देखता है. That's a very like, Yeah, you yeah. enjoy all those moments, Yeah, yeah. right? There were fights obviously because he is very clean. He is very like I'm very messy, I admit, but he is जरूरत से ज्यादा I clean. think मेरा यार, मेरा- OCD भी है थोड़ा सा. क्या है? OCD issues है मुझे. Yeah, like उसको मैं अगर समझ कपड़े मैं ट्राई तुम्हारा भी दर्द समझ सा पा रहा हूँ थोड़ा सा. उसको कपड़े ट्राई भी करने होते हैं ना. ये भी तो जूते यहाँ क्यों रखे हुए हैं ताकि मैं वेल बिहेव्ड रहूँ. Yeah, Mirror but पे है जूते. ओके ओके हाँ या तो जैसे कि कपड़े ट्राई करता है तो पहले इस्त्री करेगा 3-4 जोड़ी कपड़े, he'll iron it. फिर वो ट्राई करता है, फिर उसमें से एक डिसाइड होता है वो दोबारा हाँ, आएगा. मेरा भी वैसे है, like without having a bath, how can you try on this t-shirt? Yeah, come मेरा on. कहना है कि जब मैं ट्राई करनी है तो मैं नहा लूंगा बाद में Are यार. you crazy? Okay, it's all about bashing me. It's all their love stories. Let's get back to that. Okay. Yeah, so there were like difficulties stuff because Yeah, there were a yeah. lot of things जो मुझे भी सीखनी थी and I think it is important because as he said कि आप जितने घर के काम में आप easily जो कर सकते हो ना वो आपके ही काम आता है आगे जाके जो I think लॉकडाउन के टाइम हम सबको सबके रियलाइज काम हुआ आया. कि oh my god cooking is a life skill that everyone should know. Cleaning is a life skill that everyone should know because I think And because of that, इन्हीं reasons की वजह से लॉकडाउन में बहुत couples में झगड़े हुए. Yeah. हमारे तो इतने बहुत हुए हुए oh भाई. my god हमारे नच के टाइम भी बहुत होता था हालांकि नच के टाइम चलो में झगड़ों के टॉपिक क्या होते हैं चलो बताओ. कुछ बेसिकली झगड़े का टॉपिक कुछ बड़ा नहीं होता है. झगड़े का टॉपिक इतना होता छोटी है छोटी कि चीजें होती हैं. मतलब कि अरे यार इसको ठप दो जैसे चादर ठप दो अपना कप तो रख दो अंदर किचन सिंक में डाल दो वहां से ट्रिगर होता है. वहां से हो जाता है कि अरे तुमने ये नहीं किया था अरे तुमने ये नहीं किया था तुमने वो नहीं किया था भाई देन इट्स अ टेबल टेनिस मैच यू नो इट्स अ पीटी मैच पिंग पोंग चल रहा है एंड लॉकडाउन में एकदम से साथ आ गए थे ना पहले क्या हो रहा था कि हम लोग दिन में अपने अपने काम के लिए बाहर जाते थे फिर रात को आते एक दूसरे से मिलते अभी सुबह से लेके रात तक अभी वी जस्ट विथ ईच अदर आई थिंक तब इतना स्ट्रेस हो रहा था काम को लेके कि काम नहीं चल रहा है कोविड हो रहा था सबको तो आई थिंक वैसे भी स्ट्रेस लेवल्स बहुत ऊपर नीचे चल रहे थे Right. तो तब तो बहुत But अपने ऐसे दबा के लगा लिए कि- रहे ऐसे लगा कि शायद टूट जाएगा टूट जाएगा. नच के टाइम भी लगा नच के टाइम तो बिकॉज मैंने तो कभी उससे पहले डांस ही नहीं किया था आई डेंट इवन नो बिकॉज कभी हॉबीज ऐसे परस्यू ही नहीं की थी 15 साल की उम्र से काम ही कर रही हूँ Really? But So I it doesn't tell in the way you dance. Yeah, but I think that's credit to him also. So बहुत सर फोड़ा है मेरे लिए कोरियोग्राफर. Initially, basically she's done उन्होंने पियानो सीखा है for 15 years, 10-15 years. And तो beat sense है. And initially शायद थोड़ा सा भरतनाट्यम भी किया जैसे है. वेकेशन में मम्मी ने कथक पे डाल दिया भरतनाट्यम भी डाल दिया तब इतनी ऑप्शंस भी नहीं होते थे डांस क्लास कथक और भरतनाट्यम ही होते थे आई डेंट इवन नो कि कंटेम्प्रेरी बैले भी ऑप्शंस होती है Right. तो आई डन थोड़ा बहुत बट कभी उतना मन नहीं लगा तो कभी कंटिन्यू ही नहीं किया No, but let's come to that fiery. कि अभी लगा कि Yeah, बेकार ही ऐसा हुआ. Because no, the reason also because not for anything else because lot of couples they feel they are right there just one step away from a breakup. Yeah. सबके साथ होता है. तो वो जो एक तो नच पे बोला एक बोला कोविड में तो वो दोनों को वो दोनों टाइम कैसे हैंडल किए ये बताओ. आई डोंट नो एक तो हमारा बारिश का एक्ट था एक नच में हमने किया था आई रिमेम्बर हमने उस पूरे हफ्ते बात ही नहीं करी थी सनम हमारा फर्स्ट 30 मिला था dating for how long? 3 years. एंड लिविंग टुगेदर नच में years. ऑलरेडी 2.5 लिविंग टुगेदर हम लोग साथ में आते थे साथ में जाते थे बात नहीं करते एक हफ्ता बात नहीं किया. एक हफ्ता. एक हफ्ता. And जिस दिन परफॉर्मेंस किया it was my birthday. या और we got a 30 एंड जो भी स्ट्रेस था whatever you know इतना बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे हम पता है बहुत ज्यादा we were so drained कि अभी क्या हम इससे लड़ने की भी हिम्मत नहीं थी, so we were not talking फिर जैसे ही वो हुआ सब कुछ अच्छा हो गया सब ठीक हो गया बट देन ये लॉकडाउन वाला वो लिटिल थोड़ा ज्यादा था मतलब ऐसा था कि शायद हो गया है मतलब यू नो इट्स प्रॉब्ली डन बट आई थिंक कि वो ऐसे हो जाता है कि सारी एक स्ट्रिंग रह जाती है फिर वो वापस बांधना शुरू करती है. हाँ एक स्ट्रिंग कभी but if there are like 10 strings and 9 are broken there's only one string which is there throughout that never breaks. What is that one string between you? इवन आई लव मैं जितना भी गुस्सा होती हूँ ना बहुत एंड मैं उतना नॉर्मली इतनी टेम्पर नहीं यूज करती हूँ लाइक आई एम वेरी बट जब मुझे आता है गुस्सा बहुत तो मुझे ऐसे लगता है कि अरे नहीं इसने ऐसे किया ये हमेशा ऐसे करता है शुडंट दिस दैट एक घंटा जब उससे बिना बात किए बैठूंगी ना फिर मुझे लगता है यार कोई नहीं यार जाके बात कर लेती हूँ तो कि झेल लेंगे अब जैसा भी अपना है I झेल think it's लेंगे that moment that is, you know, like
we have to keep reminding ourselves. Like, Yeah. you know, he gave me a very beautiful example of Asha Bhosle ji. Yeah. उन्होंने इनसे शेयर किया था that there was one phase जहाँ पे उनके लाइफ में बर्मन साहब और उन्होंने बात नहीं की for almost a month. वो किस वजह से हुआ, क्या हुआ, they almost forgot about it at the end of the month, you know. फिर उनको लगा कि यार हमने ये 30 दिन लाइफ के 30 दिन वेस्ट कर दिए, क्यों? Yeah. So I think it's Yeah. just that thought that if every couple can incorporate that, उनकी लाइफ बदल जाएगी. Yeah. So that's why I keep trying. Like, and उस टाइम automatically होता है, सभी के effort लगता है कि I just start missing him so much. फिर मुझे आदत है कि यार कोई नहीं, इसने मुझसे ऐसे एक बार बात कर ली, 10 बार तो you know he's always been nice to me. And in front of people he always treats me with respect and everything. अब झगड़े में तो कौन अच्छे से बात करता है? झगड़े में तो you are all about like yelling and screaming at each other. Yeah. तो फिर बस बट लास्ट कोई में फिर नहीं. ये लगता है कि ये है तो बेस्ट फ्रेंड ही ना मेरी. Yeah. That's it for me also. Yes, love stays, love fades, love starts again. अच्छी You know, बात. but love is very ऐसा है, होता है नहीं होता है, Emotional, जा love नहीं is सकता. very, हाँ. But I think it's more of we're like best friends. Yeah. Yeah. प्यार दोस्ती. Yeah. यार दोस्ती. Yes. I used to think it's cliche. Now I really understand the depth of it. Depth of that one dialogue. Yeah, that's true. मुझे लगता है आप दोनों शायद अपने पास्ट पे भी बहुत ज्यादा कनेक्ट किए हो. Yeah. When I say past, not just Yeah. your past relationships and maybe जहाँ पे आपको ठोकर मिली हो, Yeah. दिल टूटा हो वहाँ पे, उसके अलावा मुझे लगता है your family background because Yeah. mom Yeah. के साथ में आपका जो रिश्ता है, you just mentioned about your stepdad, Yeah. तो एक उस तरफ family background की तरफ से भी जो एक दिल में चीजें होंगी जो आप शायद किसी से शेयर नहीं कर पाओगे, एक साथ में शेयर किए होंगे. Yeah. That's true. Everything, like from the word go, he has known everything. Because I think some things ना क्या होता है कि आपका जब एक childhood मुश्किल होता है या फिर कोई past relationship आपको बहुत traumatize करके छोड़ता है, ये चीजें आपको अपने partner को पहले ही बता देनी चाहिए. Because he understands. Initially मुझे trust issues थे. Because in my past relationship मुझे बहुत trust issues थे. I have done very bad things like check his phone and everything. I regret it now. I think अब मैं कभी जिंदगी में ना करूँ. But क्योंकि मुझे वो लड़ी था कि मैंने ऐसे ही last time उसको ऐसे पकड़ा था, ये ऐसे किया था. And I remember when he asked me also once, he's like, did you check my phone? And I got so embarrassed when I did say yes. And then he told me, he's like, no, it's okay, it's fine. Like, is there something जो मैं कर रहा हूँ जो तुम्हें लग रहा है कि you know, you can't trust me? फिर मैंने उसे बोला कि नहीं यार, it's not you. कि मेरे दिमाग में ये है कि because I'm thinking of it that way. But very fair what she thought. Yeah, It's and to very make it fair. benefit, he didn't make me feel bad that, oh, how can you check my phone and it's my privacy. He never made me feel bad about it. He sat me down and उसने मुझे बोला कि मैं कुछ कर रहा हूँ क्या? Do you have a problem? मैं किसी से बात करो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? तो मैंने बोला नहीं. He said फिर मेरी गलती है. I'll work harder कि तुम मुझे ज़्यादा trust करो. And after that I was like, oh my god, phone मोड तो अभी मेरे life में कभी नहीं check करोगे. Because I realized and that's I think how because normally हम offend हो जाते हैं कि तुमने मेरा phone check कैसे किया? I would also probably get offended immediately. But he dealt with it. I think after that day I've never even once thought of it in that angle. It's not even like a one day thing. Obviously उसने बहुत time से मुझे वो security feel करवाई है. It takes time. Yeah. मुझे आके बोलता है भी है कि इस लड़की ने मुझे पता है ये मैसेज किया. मैंने जवाब नहीं दिया. आज जो भी DMs आते हैं मुझे थोड़े से स्लीजी टाइप भी आते हैं ऐश्वर्या ऐसी. बेबी इसने मुझे मैसेज किया. नहीं मैंने रिप्लाई कर रहा. So he shows me everything starting से. तो फिर I think with time now I'm like at a zone कि कोई कुछ भी बोल दे सलम के बारे में मैं कभी I will never believe it. Even if I see it probably I will never believe it because इतना trust अभी उसमें हो गया. सी वाला थोड़ा ज़्यादा हो गया. ज़्यादा हो गया. बोला वो correct. बट एक चीज पे पता नहीं आप लोगों ने तो भी इस पे डिस्कशन किया कि नहीं किया बिकॉज दोनों के दोनों ऐसे सी एक रिलेशनशिप में कई पिलर्स होते हैं जिस पे अगर हम सॉर्टेड रहें जी तो वो कहते हैं ना वो स्तंभ होते हैं रिलेशनशिप के उनमें से एक होता है हमारा प्रोफेशनल फ्रंट. हम सब के सब एक ऐसे प्रोफेशन से हैं जो कि एक इनसिक्योर प्रोफेशन है. इसके पीक्स भी बहुत हैं. जब जैसे आदमी बहुत पैसा कमा रहा था फिर ऐसे में टाइम होता है एकदम बिल्कुल खाली सूखा पड़ा हुआ होता है. और आप दोनों भी सिमिलर बैकग्राउंड. इस पे कभी बात की कि इसको कैसे हैंडल करेंगे या इसके बारे में कुछ एनीथिंग करी बहुत बारी. Yeah, of course. And that dream house जिसके बारे में. Yeah. ड्रीम हाउस तो अभी जब एक्चुअली साथ में- वो निकाल दिया दिमाग से क्योंकि ना नाउ वी थिंकिंग इट्स बेटर टू इन्वेस्ट because the dream house won't get us return. Yeah, now we kind of हमने तो obviously तब हम छोटे भी थे तब वो था हमारे दिमाग में कि सबने बोला था घर खरीदो भी बॉम्बे आए तो घर खरीदो घर इम्पोर्टेंट है. अभी हमने recently tattoo studio खोला है. So Yeah, in Dadar. Yeah, in Dadar. So now it's all about investing and Yeah, so now putting
your money for better use. एंड आई थिंक वो जो मैं बात कर रहा था उसी से कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज को, Yeah, वो definitely. इन्वेस्टमेंट जो की गई है इसी वजह से. Yeah. So can you share a little bit more, because there are people, a lot of people who are in this profession, who are insecure profession, same profession. So Yeah. any insight you can share with us on that? See, पहले तो एक we split mostly everything. ठीक है. तो there is no pressure कि अच्छा इस महीने जो split है, if you are able to give it, if you're not able to give it, तब भी देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ. I will जैसे एक महीना तो 100 रुपए का खर्चा है महीने का, हाँ. हम 50 दे रहे हैं. Yeah. इस महीने बोलती है मैं नहीं दे सकती. हाँ, तो मैं दे देता तो हूँ. मैं 100 दूंगा. ठीक है. So हमारा एक वो है कि दोनों में से कोई एक तो काम करना चाहिए. You know, it's not, there is no मतलब ऐसा pressure नहीं है कि नहीं go find We work, have go to, find work. हाँ. वो कर लेंगे, we'll be there for each other type like that. ठीक है, ठीक है. And yes, क्योंकि ऐसा प्रोफेशन थोड़ा हमारा privilege थोड़ा सा है, मतलब there is no stability. Hence, you know, एक नया studio. My mother also has a different business. Yeah. Oh my God. So yeah, And I think and a lot of savings. That really works. लॉकडाउन ने ना बहुत कुछ चेंज कर दिया हमारे में, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप सोचिए, देखो अगर हमने इन्वेस्ट करके घर ले लिया होता एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तब भी हम उसी कंडीशन में होते, बिकॉज काम तो तब हो ही नहीं रहा था. 1.5-2 साल तो वर्क वाज एट अ वेरी वेरी लो फेज. सो आई थिंक आफ्टर दैट इज व्हेन आई थिंक हिज मम आल्सो, उनका भी बहुत इन्फ्लुएंस रहा इस चीज में. शी वाज लाइक, यू नो कि ये एज नहीं है घर बैठ के पैसे कमाने की, तो यू नो एक बिजनेस करो, कुछ करो, ये वो. एंड शी वाज द वन हु स्टार्टेड दिस की टैटू स्टूडियो करते, बिकॉज वी हैड अ फ्रेंड हु वाज इन इट. Wow. So then she kind of set it up and she was like, you should have something to go to. She's like, चलो आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, घर बैठे बैठे भी कमा लोगे, बट लाइक इस एज में नहीं होना चाहिए. क्योंकि एक्टिंग में क्या होता है, आप कभी काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो बोलते कि नहीं है काम, जाओ स्टूडियो पे देखो, कोलैब्स कराओ, हैंडल, सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर. तो इट गिव्स यू आल्सो पर्पस. Okay. एंड शूट जब हम करते हैं, स्पेशली आई थिंक क्योंकि मैंने टीवी किया है ज्यादा, हम जब शूट करते हैं 6-6, 8-8 महीने छुट्टी तक नहीं मिलती है. आई रिमेंबर वैक्सिंग, आईब्रो सब सेट पे होता था क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था. डे नाइट टेलीकास्ट निकालना है. सो एकदम से जब आप घर पे बैठते हो ना, आपको और दिमाग खराब हो जाता है कि सडनली अब क्या करें, क्या 1-2 दिन मजा आता है कि रेस्ट एंड उसके बाद बिकॉज इतनी आदत होगी है मेंटली ऑक्यूपाइड होने की. सो देन शी वाज लाइक, इट्स ओके, ओपन योर ओन स्टूडियो, इन्वेस्ट द मनी इन राइट प्लेसेस, कि जहां आप कर रहे हो कि थोड़ा बहुत एक्टिंग करो, डोंट गिव अप ऑन दैट, बिकॉज ऑब्वियसली आई थिंक जो इस इंडस्ट्री में है सिर्फ पैशन की वजह से. Oh, yeah, totally. ये चीज एज आप बात कर रहे थे इसके बारे में कि यू हैव टू बी क्रेजी इन लव विद दिस इंडस्ट्री सो मच दैट यू कैन यू नो गो थ्रू ऑल द हाइज एंड लोज. तो वो करो, उस पे गिव अप मत करो, बट साइड बाय साइड अपने लिए कुछ और सेटअप करते रहो कि ये नहीं आया तो उस टेंशन में you won't be living जो काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं यहाँ से आ रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ से हो जाएगा. So I think this is something that even we are exploring now. Yeah. कि चलो उससे पहले एक्चुअली चल ही रहा था. एटलीस्ट रियलिटी शोज जो कर रहा था मैं, वो बैक टू बैक आ ही रहते हैं. सही बात है. हाँ. वहाँ पे कैसा कुछ बना लिया था कि लाइक नो रियलिटी, कोई भी रियलिटी शो मेरे थ्रू होके जाएगा ही जाएगा, ऐसा हो गया था. मतलब कितने टाइम दिया है, 10-11 साल दिए हैं. Of course, yeah. कितने लोग पूछते हैं शादी कब करेंगे? सब आई थिंक पहली बार हमने इस कॉन्वर्सेशन में आई थिंक कभी डिस्क्लोज किया पब्लिकली कि हम शादी नहीं करने की सोच रहे हैं. we're not thinking we're married. एंड जैसे है Mentally married, we're not. फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं Yeah, है. there's हाँ. एंड सो मेनी थिंग्स अभी ना आजकल क्या हो गया है कि मैरिज होती है उसके ऊपर 50 वी हैड स्टार्टेड, हमने लॉकडाउन के टाइम सोचा था एक्चुअली कि दैट वी विल गेट मैरिड, कि चलो इस साल, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर सोचे कि चलो वेट, हिज सिस्टर्स गॉट प्रेग्नेंट आफ्टर देयर मैरिजेस, सो देन वी थॉट कि चलो उनको थोड़ा होने दो, वेट करते करते वी लुक्ड एट ईच अदर एंड लाइक वी आर लाइक व्हाई आर वी गेटिंग मैरिड, इज इट बिकॉज़ वी आर सपोज्ड टू गेट मैरिड, यू नो, बिकॉज़ दिस इज द नेक्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, और बिकॉज़ वी रियली वांट टू गेट मैरिड. Well said. सो बोथ ऑफ अस रियलाइज कि हम दोनों को रियली शादी करने का शौक नहीं है, हम बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी सब बोल रहे हैं कि कर लो, अरे नहीं. सो देन आई वाज लाइक, इस डर से कर रहे हैं कि रिलेशनशिप टिकेगा नहीं, तो मतलब हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग ही नहीं है ना. एंड एवरीवन सेज दिस कि शादी नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ये हो सकती है, बट क्या गारंटी है कि शादी के बाद भी ना हो. Yeah. So that's what I'm not against marriage as an institution, as a concept. It is amazing, but right now I don't think हम लोग उस जगह पे हैं जहाँ पे मन से करना है. अभी साथ रह रहे करियर पे फोकस कर रहे हैं. जब लगेगा okay, now we set in our careers and now we can have like a good function and stuff, तब कर लेंगे करना होगा तो. और ऐसे भी this like, and this is not like कि this like a open door है कि कभी भी you can get out. ऐसा नहीं है. In our heads we are
मैरिड Yeah. पति पत्नी ही है हम पति पत्नी ही है पति पत्नी नहीं है हम Exactly, there is no exit ऐसा नहीं कि हमने exit points रख रखे हैं नहीं, We are. मेरे को मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है, आई एम समबडी हु विल से कि नहीं शादी ही करनी चाहिए. आई इनफैक्ट से ऑन माय चैनल कि शादी है क्या. मैं तो पूरा उस पर किया कि शादी बनाई किस में थी, क्यों बनी थी. पहले तो ना शादियां होती थी, सबसे पहले तो अलग एक रवैया होता था. शादियों का पर्पस ही एक अलग हुआ था. यू नो, पहले पॉलिटिकल था, बच्चे करने के लिए था, वो अलग अलग रीजन थे. फिर रिलीजियस बनाया गया, बहुत चीजें जुड़ी, तब जाके शादी की चीजें का आई. वो सालों से चलती आ रही. तो हमें लगता है शादी तो करनी है, कुछ नहीं है ऐसा. बच्चा तो करनी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. सिर्फ एक ही चीज है, हमें खुश रहना है. हमें खुशी कहाँ मिलेगी, हमें वहां रहना है. तो बट माई क्वेश्चन इज टू यू, बिकॉज जितना मैं समझा हूँ आपको हमारी मुलाकात में, कोई भी लड़की जिस तरह के बैकग्राउंड से आप आई हैं, जैसे आपने काम करना शुरू किया, वो 15-16 साल की लड़की ने जो काम करना शुरू किया होगा, उसके सपने तो होंगे कि मुझे एक दिन लड़का मिलेगा, मैं शादी करूंगी. ठीक है, आपने प्रपोज भी जब किया तब भी आपने बोला हम शादी करेंगे. तो दिल में तो था. अब ये चेंज कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये बताओगे तो मजा आएगा. Okay, I'll also tell you And be why. honest. Okay? Yeah, I'm being extremely honest. Yes. तो जब मैं 15 साल की थी, obviously मैं excited थी शादी करने के लिए. फिर मैंने बालाजी के 3-4 शो किए और मुझे कुछ 50 बार दुल्हन बना दिया. तब तक मेरा ना दुल्हन के आउटफिट से खत्म हो गया था. Like I've got been married so many times. You won't believe it. वो देख के मुझे वो ज्वेलरी देख के कुछ होता है. वो की मैं इयरिंग्स Okay, okay. लाइक बिकॉज़ आई एम सो डिसिंग विद ज्वेलरी नाउ, क्योंकि तब डे नाइट शूट 3-3, 4-4 दिन दुल्हन के लहंगे में घूमी हूं मैं ऐसे भूत की तरह उस वीडियो. मेरी से ज्यादा ज्वेलरी मैं पहनता हूँ. So I was like कि वो तो एक्साइटमेंट नहीं है बची अभी कि दुल्हन की तरह रेडी होना है. ये वो तो कर रही है. और वही एक्साइटमेंट में पूरी दुनिया शादी कर रही है. Yeah, so I think half of their शादी का thrill got निकल गया it. था. Also we have a friend who recently, like I used to always see his parents come, and his parents have this really cute thing that they used to do. You know, सबके साथ लंच करते थे. लंच के बाद दोनों अपना अंदर जाके ना अंकल आंटी के लिए पान बनाते थे और दोनों बैठ के ना बहुत स्वीटली हाथ पकड़ के ऐसे वो अंकल आंटी को खिला. एंड ही टोल्ड मी दैट यू नो माय पेरेंट्स हैव नेवर बीन मैरिड बिकॉज़ दे रैन अवे एंड देन दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर. इतना लाइफ सेट करने की उसमें हो गया था कि दे नेवर रियली रिमेंबर्ड ओनली कि शादी भी करनी है. Nice. And that really stuck to me because in their heads they are mentally married at this age, just holding hands and feeding each other pan. So It's another guy. that day I was like, okay, the marriage is just a state of mind. If you're there, you're there. If you're not there, आप कर भी लो, it will not work out for you. Yeah. So if you're mentally prepared for it, like a lot of my friends are excited to get married, and I'm excited for them. Great. But for me, I am very content where I am. Like I think कि चलो आगे जाके अगर ऐसे हुआ कि कर लो, ये वो भी बीच में there was something in the news about living couples getting registered and stuff like that. Okay. So then also we spoke कि ठीक है करना होगा तब कर लेंगे, देख लेंगे. ठीक है. But अभी I'm not there कि अरे that is main priority. Now main priority is career. Yeah. Building a good lives for ourselves जो हमने लॉकडाउन में 2-3 साल गवाए हैं उसका कॉम्पेंसेट करना है and do better and then eventually if we feel करना है कर लेंगे तब भी. तो ऐसा there is no thing कि छोड़ के चला जाएगा क्योंकि मैं काइंड ऑफ उसके घर में ही रह रही हूँ. ऐसे ही सर कहा जाएंगे. What about you, Sanam? ये माइंडसेट कैसे बना? मैं तो बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल था. शी इज अ कैथलिक, तो मुझे लगा कि वाइट वेडिंग तो करेंगे. मैं सरदार हूँ, तो मुझे लगा 4 फेरे में हमारा काम हो जाएगा. तो फिर हुआ क्या, कोर्ट भी करना ही है. कोर्ट तो करने तो 3 हो गई है ना. तो मम्मी मुझे कि अरे शायद वाइट को हम वो कर सकते हैं या वो किसी एक को माइनस कर सकते हैं. क्योंकि 3 is not a good number, she said. 3 बार नहीं करो, 2 करो या 4 करो. तो हम लोग अभी डिस्कस तो कि 4 करने पड़ेंगे तो करते ही नहीं. अरे इतना अगर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट कि कितनी करनी है, क्या क्या उसी में हो गया स्ट्रेस. एंड उसी में ही हो गया कि अरे इनको भी बुलाना पड़ेगा, इनको भी बुलाना पड़ेगा. किसी को नहीं बुलाना, हम खुश. हाँ नहीं करनी है. So one of those things also, that was one of the points. ठीक है. And second was कि अभी है ये मतलब you know she's the final one for me. तो I'm not even interested in कि अच्छा मुझे कोई और देखना है या Yeah, you better not be, baby. नहीं वैसा भी नहीं कि मतलब बिकॉज जब हमारी झगड़े होते हैं ना और ये सब होता है तो ये सब चीजें तब आती है दिमाग में कि अरे अच्छा अभी तो ये सब नहीं हुआ है. एंड यू नो देयर सो मच स्ट्रेस. बट देन आई नो दैट आई लव हर टू मच फॉर यू नो कि अगर शादी कर लेंगे तो शायद चीजें ना वर्कआउट हो.
और प्रेशर हो जाए, आई डोंट नो, दिस जस्ट And every marriage, every wedding I've attended ना, सबसे ज्यादा स्ट्रेस में दूल्हा दुल्हन को लेती हूँ। हाँ Oh yes, And I'm they are like, the you, most hungry, yeah, the and most most irritated. irritated. My own best friends, they were like so annoyed with their own wedding. I'm like, फिर, and as I said, वो मतलब दुल्हन का जो है देख के मुझे वो हो जाता था कि even when हमारी शादी की बात हुई थी तो I told his mom कि मुझे ना ज्यादा, चलो कोई बात नहीं, एक सूट कर लेंगे, सिर्फ सिंपल सा सूट कर लेंगे। I was like, yeah, that works for me. वो सब तैयार है अरुण। And I remember we were sitting at this place eating sushi, his mom, him and me. जब ये डिस्कशन हुआ, ऐसा भी कुछ लंबी बात करके बस कंक्लूजन पे आए कि इसको बुलाना है, उसको बुलाना है, 3 फंक्शन 4 फंक्शन, अरे इनको तो बुलाना ही होगा, इन्होंने अपनी शादी में बुलाया है इन्होंने। Sanam looked at me like, baby, yeah, Sanam looked at me and he's like, baby, I am very secure with you. Are you secure with me? करना है शादी या बिना शादी के लिए ओके? I said I'm okay with what you're okay. हमने वहीं पे हाथ मिलाया. His mom looked at us and said कि Are you guys sure? And we're like हाँ we are sure. बस वहीं पे decide हो गया. And mom was also okay, your Yeah. side. My dad is still like थोड़ा बोलते रहते कि देख लो कोर्ट में जाके कर लो. Okay. अरे लोग कि मैं जहाँ कोर्ट पे ले बोलूँगी बोलते एक फंक्शन तो करना पड़ेगा. तो I was like पापा मैं जानती हूँ कि where this is heading. But my mother was cool. She only पहले तो उन्होंने suggest किया था लिव-इन yeah. कि पहले देख लो साथ ऐसे में. Oh, मम्मी ने suggest किया मम्मी था। सजेस्ट की लिव-इन कर लो अभी इस टाइम पे कर सकते हो, यू नो ये ऐसा है, वक्त ऐसा है कि यू कैन एक्सप्लोर. चला नहीं चला एटलीस्ट शादी करके देन यू वोंट बी स्टक Yeah. Yeah. कि देन फिर बड़ी सारी चीजें आ जाती होंगी हाउएवर, Yeah. बट यू लाइक कि व्हाई डोंट यू ट्राई दिस. Wow. So आपको 10 साल हुए हैं एक जी. साथ और बीच में बहुत ऊंची नीची Yeah. खड्डों गड्ढों पैंडेमिक लड़ाइयाँ सब हुई है. जो चलती रहेगी हाँ. Yeah. जो चलती Part of रहेगी. life. Yeah. वो गड्ढे तो चलते रहेंगे. बर्तन है खनकेंगे. हाय तेरा पंजाबी मुंडा. तो खनकते खनकते आवाज में क्या टिप्स देना चाहोगे आप टू ऑल द लिसनर्स ऑफ Yeah, I think what did you learn amongst yourselves? You know, आपस में एक चीज सीख जाते हैं भैया हम ये क्या कर रहे थे. now we can't go back, now we have to live together, you know that frame of mind which is so strong. I think one thing You come तो to ये terms. one thing तो ये कि जब गुस्सा है सामने वाले पे सीधा तब रिएक्ट मत करना. आई थिंक आधा पौना घंटा बैठो उसके साथ, समझो कि ये चीज आपको क्यों बुरा फील हो रहा है, आपको किसकी वजह से लग रहा है, और उसको एक बहुत ही तरीके से सामने वाले को प्रेजेंट करो, यू नो इन टर्म्स ऑफ कॉन्वर्सेशन. Are you doing it? Yeah, I it's think like now we've started doing it where we actually like we get angry, we just like okay नहीं बात करते हैं, अच्छा. फिर बैठ के बोलते हैं कि बेबी So pause button दबाया? like ये पॉज वाला भी अभी we saw it somewhere Yeah, we saw and it. we thought कि ये करना चाहिए हमें. क्या अच्छा. क्या ये कि some one जगह of the पे pause. series I saw Okay. जहाँ पर दो How I लोग Met Your Mother, Lily and Marshall, I think. Oh yeah, How I Met Your Mother. So Yeah. they pause the fight and then they get back and then whenever they have to resume, then they talk about it. But when they pause, you're back to your lovable and you know normal. You pause the normal. fight. Yeah. You kind of come out of that. Yeah. Third body like out of body ये experience. सिर्फ फिल्मों में हो सकता But है. haven't Yeah, tried it. उससे भी We've कौन not tried it pause yet. करता है? We've not tried it It's yet. not बहुत possible. मुश्किल है, बहुत मुश्किल Yeah, है. yeah. मैं तो सिर्फ वॉइस नोट्स भेजती हूँ. Yeah. तो वॉइस नोट में क्या होता है, थोड़ा अगर कुछ गलत भी बोलती है डिलीट बटन का ऑप्शन. या आजकल तो थैंक गॉड फॉर व्हाट्सएप. मैं बताता हूँ हमारा क्या होता है. अब हमारा कुछ हो गया मतभेद, मैं उनमें से नहीं हूँ कि आई कांट स्लीप विदाउट अ फाइट. आई कैन स्लीप. ओके एंड आई विल स्लीप. मी टू. मैं सो जाऊंगा. अभी वो सब नहीं भाई, वो सब बाद में देखेंगे. अब इसको नींद नहीं आती. अब ये तो तो ये फालतू में जाएगी और ये धड़ा वॉइस नोट पे जो भी डिलीट करे, जो भी करे, कुछ फिल्टर होके. अब जब मैं सुबह उठता हूँ, अब मैं वॉइस नोट देखता हूँ और मुझे पता है अब जब ये उठेगी ये हल्की हो चुकी है. Yeah. तो मुझे सुनने की कोई जरूरत नहीं है. मैं सब डिलीट भी कर देता हूँ. तुम्हें आज बता रहा हूँ मैं. सुनो मेरी बात. मैं सब डिलीट नहीं करता हूँ क्योंकि अब मैं सुनूंगा. अब जो उसको क्या, फिर आपको खून खोलेगा. अब मेरा खून खोलेगा. ये तो ठंडी हो चुकी है. अब मैं वापस जाऊंगा वॉरियर बन के, तूने ऐसा क्यों बोला. फायदा नहीं ना. ये भी हल्की हो चुकी है, मैं सो के हल्का हो चुका हूँ वैसे ही. तो बस कोई फायदा नहीं है ना. देखो वॉइस नोट्स कैंसिल. आज का मुंह पे चिल्लाएंगे. फेस टू फेस. तो मुझे नींद से मत उठाना बस मेरी, और कुछ नहीं. See, this is what we have been together now for 15 years. तो इतना नहीं सीखा 15 साल के बाद तो फिर क्या सीखेगा, है ना.
तो या एंड आई थिंक गुस्से में आप कुछ भी बोलो, आप जितने भी सही भी हो, मैं उसको भी ये बात बोलती हूँ कि जब आप गुस्से में आते हो, इवन इफ यूर इन द राइट, आपका बोलने का तरीका ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप तभी समझ पाओगे जब कोई आपको प्यार से समझाए। कोई गुस्से में आपको राइट चीज भी बोले ना, नहीं, अगेन आई हैव दैट प्रॉब्लम। मेरा ना कि उल्टा है, आई एम सो सॉरी। that's मैं जब okay. गुस्से में होता हूँ ना और मैं कुछ बोल रहा होता हूँ ना, मैं उस वक्त ही बोलता हूँ। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैं यही बोलूंगा 5 घंटे बाद भी। ये मैं सोचना मैं गुस्से में बोल रहा हूँ, Yeah. यही सही है। तो Yeah. मेरे को आज ये एक साइड रखो, ये सब कुछ हथियार साइड रखो, मैं पाए पड़े मैं बड़ी गिव मी यार, सब निकल के आ रहा है आज बाहर। आयुष से एक सर कुछ बोल रहा था। So I recently saw something because we're so कितना हम सोशल मीडिया के हम उसमें आ चुके हैं, you know, ट्रैप्ड। है ना। तो मैंने कुछ देख रहा था कि जब एक्चुअली जब दो लोग लड़ रहे होते हैं, both of them are yelling. अरे बहुत सही है है ना? यार, वो Both of them, बहुत they're so together, they're so like आमने सामने, but they're yelling at each other because their hearts have gone so far. आप इतनी पास हो, आपको धीरे बोलना चाहिए, तो चिल्ला क्यों रहे हो आप? क्योंकि Yeah, दिल yeah, बहुत yeah. चुके हैं। बहुत सही था वो, बहुत सही था। So I really मतलब वो रह गया वो मेरे रह गया, पास। मेरे अंदर भी रह गया। And I feel I will try कि I will not yell and I'll be more calm, more patient. या क्योंकि बुरा तो लगने ही वाला है, आप साथ में रहने वाले हो। Yeah. Everything is not going to It's be कि inevitable. अच्छा ही अच्छा होगा। Salam voice notes. Voice. And dare you delete अनमोल का influence. ओहो, आज भाला फोड़ दिया Delete तुमने। me, don't delete everyone. Delete me. But I think यही है. I Yeah. think best way is to just listen Yeah. and accept. My कि- fault. Let's make it work. कितनी बार तो हमारा ऐसे झगड़ा होता है ना, तो अभी वो चाहते हैं कि मैं सॉरी बोलूं, बट मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि मुझे ना इस चीज पे गुस्सा आता है कि तुमने डांटा कैसे, तुमने प्यार से क्यों नहीं बोला कि ये वो। बिकॉज इफ यू टेल मी एनीथिंग प्यार से ना, मैं मान जाऊंगी कि ओके। गुस्से में बोल दिया, अब मेरा मूड ऑफ हो गया है कि तुम्हारा टोन ही गलत था। इवन तो मैं हेड आई नो कि यू नो उसकी बात सही है, बट नहीं, उसने मुझसे अच्छे से बात नहीं की। तो आता है, बोलता है बेबी आई एम वेरी सॉरी कि मैंने ऐसे ऐसे बोला, अब तुम भी सॉरी बोलो। और मुझे और सॉरी इसमें बोल You know, I have to say so many sorries. I'm sorry for this. I'm sorry for this. I'm sorry for this. Are you sorry for anything? What? What is you sorry? I'm like, you're only saying sorry so that I say sorry ना, बोलता हाँ। बोलते कैसे? But yeah, I think, and I think every couple has their own ways of dealing. Yeah. लोग ही बहुत इतने सही, अलग अलग बहुत होते सही, हैं। बहुत सही। So I know that बहुत बार ये भी अपना गुस्सा पी जाता है मेरी कुछ चीजों पे। I think we just start understanding that हर बार हम we won't be our best. Yeah. There are days when he will not be his best, and that's Yeah. when I have to take over. And there are days when I'm not my best, and that day he'll take care of me. Right. So I think just understanding that, working as a team, because again, love attraction fades, but teamwork ही रहती है कि आप कैसे चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हो। जैसे हमारा वो बहुत अच्छा है कि चलो वी हैव अ बिजी डे, आई से ओके आई टेक योर मॉम हियर, उनको ये काम है, बम्पी को वेट के पास ले जाना है, ऐसे ऐसे, तो हम मैनेज बहुत अच्छे से कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। Yeah. सो आई थिंक दैट इज दोस्तों, प्यार दोस्ती है, प्यार टीम वर्क है। यस। क्या team? और यही मंत्र है आज के एपिसोड का, जो It's there out for you. Take it or leave it. नहीं, but हमने जो कुछ बातें की, I think Yeah. you know those when I was mentioning about those different layers which were coming Yeah. out individually, तो आप दोनों की तरफ से वो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा। And your aspect on marriage जो आपने कहा, और जो बहुत अच्छे से आपने बोला कि yes, शुरू से थोड़ा होता है कि बचपन से ही मैं तो शादी नहीं करने वाली हूँ, Yeah. हम उसी से आते हैं। That's a schooling. जो That's स्कूलिंग the है, basic schooling. लेकिन उसके बाद कैसे वो चेंज ऑफ माइंड हुआ जो आप दोनों का, वो I think एकता बहुत कपूर interesting। is also to be blamed. Thank you. Thank you guys. Thank you. For getting you married so many times. Yeah. Oh my we God. have something very cute for both of you. Whoa, it's come flying your way. So these are customized couple of things. Oh, this is hoodies so nice. I love the color. for you. also. That is for her. There. वो ये आपका Because it आपका says size. Because Salam. Oh my God, and it's so this sweet. is Abby, Yeah. अब मैं लिटरली हर जगह तुम्हारे साथ जाऊंगी। वाह यार, so when they say I carry my heart on my sleeve, you carry your wife, your Yes. girlfriend, your boyfriend on your sleeve. boyfriend, right? So babe? nice. This is so cute. Thank you for this. मेरा भी अच्छे से फोल्ड कर दो जैसे अपना फोल्ड Yes, कर दो।
बिकॉज अब मैं इसके सामने फोल्ड करूंगी तो मैं बहुत ही amateur लगूंगी. ओह, वो ये देखो. Yeah. वाह, ओहो मेरा बीबा मुंडा. So many stylists that we work with ना वो मुझे बोलते हैं कि यार कहाँ से आया ये लड़का कॉस्ट्यूम ट्राई करते हैं फोल्ड करके रख रहा है. मैं उसको आदत है बोलती हूँ ना. कि मेरा काम है मैं कर लूंगी. बोलते हैं नहीं मैं कर लूंगी सारे कपड़े फोल्ड कर करके. ये अब हम घर लेके जाएंगे. सारा मैनावी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ कपल ऑफ थिंग्स. हम दोनों को हमेशा जो हम जब हम किसी कपल से मिलते हैं तो हम उनसे कुछ लेके चले आते हैं और हम यहाँ से बहुत प्यारी प्यारी कुछ चीजें लेके जा रहे हैं जो कि हम अपने रिलेशनशिप में उसको अप्लाई करेंगे. एंड we wish you guys loads of love. Thank you. Whatever we have seen, हमारे 15 साल के रिश्ते में हमने देखा है कि जैसे मुंबई की रोड्स हैं, इनके खड्डे कभी नहीं भरेंगे, लेकिन फिर भी हम ड्राइव करते हैं. Yes. हम उस पे झूमते हैं, उस पे मजे लेते हैं. तो हमें भी लगता है रिश्ते भी ऐसे ही हैं. इसमें भी खड्डे आएंगे, हम उनको भरते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे. So we wish you guys all the best and all this togetherness एकदम कड़क tight always. Thank you so much. I think it was great. Very honestly, I'm meeting both of you for the first time. Obviously, I know both of you. But पहली बार हम मिल रहे थे and बहुत ही I think स्मूथली सब चला गया. मैंने पहली बार मेंशन किया है दैट वी डोंट वांट टू गेट मैरिड ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म क्योंकि हमने पहले इसके बारे में पब्लिकली तो बात नहीं की थी, आपस में डिस्कस किया तो सोचा आपस में रखेंगे, अपने अपने लोगों को बताएंगे. बट आई थिंक थैंक्स टू दिस अभी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गया है कि अपना साइड भी एक्सप्लेन करने. और बहुत से लोगों को इसमें उनको वो अपने आप को देखेंगे आप दोनों में जो आपने उठाए. इसलिए Yeah, I think आप बस लॉयल रहो. Yeah. Everything else is okay. I think. Thank you guys so much for having us. It has been great. It's Yeah. बहुत ही जल्दी सब निकल गया. I was actually quite nervous because I'm meeting you for the first time. तो मुझे लगा कि पता नहीं कैसे जाएगा. But I think you guys were brilliant from the word go. जहाँ thank प्यार you. की बातें हैं वहाँ पे couple of things. Couple of things. Yeah. Thank you. Great. Couple of things. Couple of things. Couple of things. Couple of things. Couple of things.